लैम्बर्ट्स बिरला, राइट, लैम्बर्ट्स बिरला। ये बहुत सिंपल है, इसमें दो चीजें कंबाइन किया गया है, राइट। सो वेरी सिंपली यू शुड मार्क दैट रेशियो ऑफ इंसिडेंट लाइट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। ओके, रेशियो ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट रेशियो क्या होता है, जैसे एक ट्यूब है, राइट, दिस इज द ट्यूब, so this is the incident light and some light will be absorbed here है ना, and some, and then after the absorption only few light will be emitted, only few % of light will be emitted. Okay, so now this is incident light I0 and this is I. So ratio of I0 by I is proportional to what? Proportional to this length. This length is fixed, L, proportional to the concentration C. तो इसीलिए इसको कहा गया di by I proportional to CDL यानी लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल डिक्रीज इन लाइट ट्रांसमिशन, इसीलिए निगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल देयर इज ए डिक्रीज, दिस इज ए डिक्रीज, this is the original light है ना। तो after the absorption, because there is absorption, there is a decreased transmitted light, and this is a decreased transmitted light. Okay, clear? So finally you can adjust it and you will get absorption is equal to, sir, slide को previous slide. अच्छा, अच्छा, ये वाला नोट कर रहे हो, ओके। सो लाइट एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सपोनेंशियल रादर देन ए लीनियर लॉ। तो लीनियर करने के लिए क्या करते हैं, द कंसंट्रेशन शुड बी वेरी लो, लेंथ ऑफ लाइट पाथ एंड लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंड देन दे आर मैथमेटिकली डिराइव्ड, है ना, एंड देन यू आर गेटिंग यूनिक। नोट्स में मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये तो थोड़ा, हाँ ये देखो, दिस इज द एक्चुअल मशीन, है ना, दैट्स वर्किंग। एक्चुअल मशीन इज वर्किंग लाइक दिस, कि दिस इज ए लाइट सोर्स and there is a collimator and then via monochromator specific wavelength are separated। जैसे आप कहते हैं ना कि हमें 280 पे लेना है, 260 पे लेना है, तो वो आप collimator मूव करके मोनोक्रोमेटर से एक फिल्टर्ड वेवलेंथ की लाइट ले सकते हो। आउट ऑफ 7 rays, 7 wavelength, you can pick any one wavelength, so according to that, and this is the vessel cuvette containing sample solution, and this is the photo cell. So whatever the incident light is there, original light I0, and now after passing from the cuvette, this light is absorbed. This is called as the transmitted light. The transmitted light finally क्या हुआ, I0, I upon I0, sorry, I upon I0। इसका डेरिवेशन मैंने बना के रखा है, वो मैं फटाक से दिखा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये लैम्बर्ट्स वगैरह, तो T इक्वल टू I बाई I0, यहाँ पे आप देख सकते हो T इक्वल टू I बाई I0। व्हाट इज T? कभी कभी T पूछ देते हैं आपसे एग्जाम में, राइट, कि टेल मी अबाउट द ट्रांसमिटेंस। सो ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ transmitted intensity over incident. So this is the original light. Original light is called as the incident light, है ना, इंसिडेंट लाइट, और ये एब्जॉर्ब लाइट है, absorb light, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। T इक्वल टू I बाई I0। लेकिन जब आप परसेंटेज ट्रांसमिशन इसी को करते हो तो सिर्फ आपको T% लिख के 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आई एम मेकिंग एवरीथिंग इजी, है ना, सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज द Beer-Lambert's law। देयर वर 2 साइंटिस्ट sir, previous slide, sir, please, sir.
Beer-Lambert's law is relationship between attenuation of light through a substance and the property of the substance. In this definition of transmitted and absorption of light by a substance are first introduced, followed by an explanation of the Beer-Lambert law. What are the transmitted and absorbance? So this is the transmittance, right? Which is the ratio of transmitted light upon the incident light, and the value varies between 0 to 1. Now, how to derive the absorbance? So, absorbance, you can derive absorbance of the solution is related to the transmittance and incident light. उल्टा होता है जो आपने यहाँ देखा था, ठीक है. अब absorption उसका उल्टा है, यानी absorption is equal to 1 by T. Absorption proportional to 1 by T, है ना? तो अगर एब्जॉर्प्शन आप लिख रहे हो तो 1 by T लिखोगे, राइट? तो लॉग वैल्यू लेना होता है इसका, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, हमने बताया ना, दिस इज एक्सपोनेंशियल. तो जब भी एक्सपोनेंशियल होता है तो ऑलवेज यू हैव टू टेक द लॉग, एंड 1 by T है 1 by T. तो 1 by T में क्या हो जाएगा, I0 ऊपर चला जाएगा एंड I विल बी बिलो. log 10 I0 upon I, है ना? यस log 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. तो नाउ अब क्या हो गया, A इज इक्वल टू माइनस log 10 T. एक नया फार्मूला आपको मिल गया. So that shows the relation between the absorbance and transmittance. Absorbance and transmittance. ठीक है, नोट कर लिए विपन जी? यस सर. अभी नेक्स्ट देखो, दिस इज द एब्जॉर्बेंस एंड दिस इज द परसेंट ट्रांसमिटेंस. जितना एब्जॉर्बेंस बढ़ाते जाओगे, है ना, ओडी लेते हैं ना, ओडी 1 2 3 4 5, तो एबव 1 ओडी इज नॉट अलाउड. रादर देन आप करते क्या हो कि एब्जॉर्बेंस को 0 to 1 के बीच में रखते हो. तो दैट इज 0 मतलब 100% ट्रांसमिटेंस, 1 में 10%. ओके, इससे बियॉन्ड में ये फॉलो नहीं करता है. तो व्हाट इज द Beer-Lambert's law? Beer-Lambert's law is a linear relationship between the absorbance and the concentration, and ये important है definition. Why this is important? Because actually इसी पे क्वेश्चन आते हैं. Beer-Lambert's law is a linear relationship between absorbance and concentration, molar absorption coefficient and optical coefficient of solution. इतने टर्म है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वही कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एंड ट्रांसमिटेंस वही ऑप्टिकल कोफिशिएंट जो इसको होता है. तो फाइनली व्हाट यू कैन राइट, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू. सर एक मिनट सर, डेफिनेशन दिखा दीजिए. हाँ सर, डेफिनेशन लिखते. हाँ लिख लीजिए. Beer-Lambert's law is a linear relationship between absorbance, concentration, molar absorption coefficient, and optical coefficient of a solution. Molar absorption coefficient. सर लेकिन अभी तो आपने कहा Beer-Lambert लॉ जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है. एक्सपोनेंशियल तो शुरू में था ना, उसको log 10 में कन्वर्ट कर दिया ना. अच्छा, ओके. जब log 10 में कन्वर्ट करके ये वैल्यू ले आए तो ये लीनियर हो गया ना. यस. अब इसको फिर से डिराइव कर रहे हैं ना. अब A इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन, लेंथ. तो ये परसेंट T तो है नहीं ना, ये आ गया. यस सर, यस. ठीक है. A इक्वल अभी टू प्रोटीन का कैलकुलेशन होगा ना. हाँ अभी करवाएंगे ना. हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, 10 to 20 क्वेश्चंस कराएंगे. आज का टारगेट यही है, खाली Lambert's Beer law. तो इसका क्वेश्चन आता ही है, एकदम आना है आपको. 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से. इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पूछ देते हैं, कभी मोलर कंसंट्रेशन पूछ देते हैं, कभी एब्जॉर्बेंस पूछ देते हैं. कैलकुलेट करो. तो यू हैव टू अप्लाई A इक्वल टू ECL
और a इक्वल टू माइनस log 10t, है ना, और समटाइम दे कैन आस्क यू द सिंपली ट्रांसमिटेंस. So now we are coming to the numericals. So this was the working mode of the spectrophotometer. So अब जैसे आप पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आ गया ALC. एक्चुअल में रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट इज प्रोपोर्शनल टू C, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होता है वो ले लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में. दिस log I0 by I is equal to called as absorbance. ये ध्यान रखना, absorbance is equal to what? Absorbance is equal to what? Absorbance is the ratio of log I0 upon I. इसमें गलती मत करना, I0 नीचे मत लिख देना, ठीक है, बात समझ गए, क्योंकि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t. T होता है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना. T इक्वल टू कितना होता है? I by I0. 1/t करोगे तो इसलिए I0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. एंड देन A proportional to C, K proportional to L. That's why log I0 upon I is equal to ALC. ALC. ठीक, तो this is equal to absorbance. A लिख लो या eta LC. This is the molar absorption coefficient. Molar what यूज हुआ है? molar absorption कोएफिशिएंट, है ना. तो ये वेवलेंथ में मेजर करता है, वो इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, मतलब एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, है ना. तो अगर आप A340 पे ले रहे हो एब्जॉर्बेंस, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा A340, ठीक है ना. एंड मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होती है? कभी और ऑप्टिकल डेंसिटी. हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, सेम है. एंड यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है? पर मोल पर मोल सेंटीमीटर, पर मोल पर सेंटीमीटर. यस सर. ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ. हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है कि सपोज जनरली क्या होता है, जनरली दिस लेंथ इज 1 centimeter, this is fixed, 1 centimeter. And whenever the light is passing, suppose light is 1, so there is a 20% loss in every incident. 20% loss हुआ तो ये हो गया, अगर I0 was 1, है ना, तो now I will be 0.8. अब अगर इसी तरह से हमने फिर से सवाल बना दिया कि अब सेकंड फेज में कितना लाइट पास होगी बताओ, फिर आपको 20% लॉस करना है. हाँ, 20% लॉस करना है, ये हो जाएगा 0.6 सेकंड फेज में. थर्ड फेज में फिर इसका हो जाएगा 0.4, 20% लॉस. लेकिन हर फेज में आपको ये रूल याद रखना है, तो आपका न्यूमेरिकल करना भी आसान हो जाएगा. व्हेन यू नो द फंडामेंटल एस्पेक्ट वेरी क्लियरली, एंड कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिटन इन द mg per liter. mg per liter, this is the concentration, always written in the mg per liter. Path length 1 centimeter. सर यहाँ पर 80% ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड, 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट इज अब्सॉर्ब. हाँ, तो 0.2 का माइनस करना है, 1 माइनस 0.2 हर फेज में, 0.8 माइनस 0.2, 0.6 माइनस 0.2, 20% लॉस हो रहा है ना. समझ गए बात?
1 माइनस 0.2 हर फेज में। कभी कभी ऐसे दे सकते हैं आपको 20% आप सर एब्जॉर्ब हो रहा है ना सर, 80% ट्रांसमिटेंट होगा। ये ट्रांसमिटेड, अब इसके लिए एब्जॉर्बेंस हो गया ना सेकंड क्यूबिट के लिए, अब इसके लिए ये इंसिडेंट हो गया ना, इसके लिए ये इंसिडेंट था, ठीक है, फिर ये ट्रांसमिटेड हो गया, अब इसके लिए ये इंसिडेंट हो गया, ये ट्रांसमिटेड हो गया। दिमाग का ट्विस्टिंग करके न्यूमेरिकल तो पूछी जा सकता है। जी जी सर। तो कॉन्सेप्ट ही चेक करना है मुझे, तो ऐसे मैंने फ्रेम अप कर दिया। जैसे देखो आया भी है क्वेश्चन इस तरह का कि 1 सेंटीमीटर लॉस हुआ तो 0.8 आया है ना, फिर 0.8 इंसिडेंट हुआ तो 0.64 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सर 20% 0.8 का 20% होगा। हाँ 16। 20% ऑफ 0.8 इज 0.16। यस सर। हमने गलत निकाला है। 20%, 80% ऑफ 0.8 इज 64% ट्रांसमिटेड। अच्छा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। सर सपोज करो 100% है, 0.80 आया है ना, इसका करना है ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लाई बाई 80%, क्योंकि 20% तो एब्जॉर्ब हो गया, लॉस हो गया, तो ये आएगा 64%, जो कि अभी इंसिडेंट होना है नेक्स्ट फेज में। यस सर। और लॉस कितना हुआ? 0.8 का लॉस हुआ 0.20%, तो माइनस करके 0.2 करके 0.6 निकाल सकते, लेकिन यहां भी गलत है, ऐसे नहीं निकालना है। 0.8 का 20%, 20/100, यानी ये कर लो, 1 हो गया 5, ठीक है, तो 80/5, दिस बिकम्स, परसेंट करोगे इंटू 100 है ना, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.16 परसेंट में है ना, 20%। डायरेक्ट तो था, अरे बेकार में इतना चले गए। देखो 0.8 इंटू 0.2 सीधे 0.16 आ गया। सर इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, सपोज करो 100% है लाइट, देन आपका 20% एब्जॉर्ब हो गया और बचा 80%, वो आपका ट्रांसमिटेंस हो गया। हाँ, ये 80% बचा, 20% लॉस हो गया, ट्रांसमिटेंस और 20 एब्जॉर्ब। हाँ, I0 हो गया, ठीक है। इसी को कह रहा है कि अगर ओडी में दे दें, मान लो ये 1 है, I0 इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना निकलेगा? तो 80% निकला ना, तो 0.8 इंटू 1 है ना, और ये फिर सेकेंड क्यूबिट आ गया, तो 0.8 इंटू 0.8 0.64 आ गया, तो ये I2 हो गया दूसरे लाइट के लिए। निकलने वाला तो 80% होगा ना, 20% तो लॉस वाला हुआ। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। यस सर 0.8 हो गया सर। I0 यानी एब्जॉर्बेंस, अगर जो लाइट आ रहा है 1, देन ट्रांसमिटेंस होगा 0.8 और 0.2 इट मींस कि एब्जॉर्ब हो गया है। फिर अगेन अब 0.8 जो है वो फिर से I0 हो जाएगा फॉर नेक्स्ट क्यूवेट के लिए। फिर 0.8 हो जाएगा है ना सर। फिर इसमें 0 यस सर 0, फिर आया 0.6, फिर I जो है वो 0.6 ट्रांसमिटेंस हो गया नेक्स्ट के लिए। सर समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया, यानी ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, ये भी नोट कर लो। जनरल प्रिंसिपल, ये मतलब क्विक आंसर के लिए। इफ ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C has a transmittance of I, then a solution of concentration 2C
अगर C है तो इसका ट्रांसमिटेंस है I, ठीक है। तो 2C होगा तो कितना होगा इसका I स्क्वायर, ये नोट करने वाली बात है। 3C होगा तो I क्यूब, NC हुआ तो IN, ये फार्मूला होगा। ट्रांसमिटेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट विपांशी? यस सर। अगर आप I नहीं होते तो क्या होता है? I की पावर N हो जाता है। 20% लॉस हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज द फार्मूला, NC इक्वल टू I अपॉन L। सर जब मैं फर्स्ट ज्वाइन हुई थी मुझे लगा आप डाटा का कुछ कोरिलेशन जी को मतलब अफिन को पढ़ा रहे हो, तो मुझे तो वो कुछ नहीं आता है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि मुझे कुछ आ जाए समझ, कुछ नहीं आया। फिर मुझे लगा आज मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक कॉल आया था वो बहुत देर तक चला, इसलिए मैं टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। मैं जैसे कॉलेज चलाता हूँ तो 300-400 बच्चे हैं करीब, तो मतलब डेली 200-300 कॉल अगर हो जाएगी, अगर मैं उनको परमिट कर दूं कि कॉल करो मुझे कोई दिक्कत है, तो मैंने क्या रूल बनाया है कि ओनली व्हाट्सएप मैसेज रिटर्न। तो रिटर्न से प्रूव भी हो जाता है कि व्हाट दे डिड, व्हाट दे सेंड मी, एंड आई हैव जस्ट 1 सेंटेंस टू रिप्लाई। अभी बात समझने में उनको हमें 5-10 मिनट लगेगा, फालतू का टाइम लॉस होगा। तो आई नेवर एप्रेज स्टूडेंट टू कॉल टीचर until unless it's very essential। तो चलो एक तो फार्मूला ये नोट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इफ द लाइट पाथ थिकनेस इज इंक्रीज एंड फॉर इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। थिकनेस तो इस पे तो कोई पढ़ाएगा नहीं ना, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कोई बताएगा नहीं। तो अगर थिकनेस इज इंक्रीजिंग एंड फोल्ड, तो ट्रांसमिशन क्या होगा? ट्रांसमिशन इक्वल टू I की पावर n, सिंपल, I की पावर n। थिकनेस n फोल्ड कर दिया तब भी, कंसंट्रेशन अगर ट्वाइस थ्राइस कर दिया तब भी पावर में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, पावर में जाएगा, राइट। सो absorbance of solution is linear function of concentration, doubling C result in doubling of the absorbance, tripling C result in tripling of absorbance, ठीक है। तो उसको कन्वर्जन के बाद नाउ यू कैन राइट लाइक दिस। ये ट्रांसमिशन के लिए था, T था ये जो I स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर दे आर आस्किंग फॉर एब्जॉर्बेंस, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absorbance. Concentration is 2C, the absorbance will be 2A. Concentration will be 3C, absorbance will be 3A. ठीक है। ठीक है ना? यस सर। So now try to solve this question. चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर ऑफ 2 ग्राम दिया, ध्यान देना। इसकी यूनिट मैंने क्या लिखवाया था कंसंट्रेशन की? mg पर लीटर। तो अभी देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो 2 ग्राम पर लीटर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूबेड ट्रांसमिट 75% ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ है। अब देखो 80% होता है, लेकिन यहाँ 75% ही हो रहा है। कैलकुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर, 6 ग्राम पर लीटर एंड 5.4 ग्राम per liter. If the molecular weight of the compound is 250, then calculate the AM, यानी ईटा मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। चलो उसको बाद में करेंगे, ई वाले को पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। ए इक्वल टू 4 ग्राम पर लीटर, यानी 2 ग्राम से बढ़ा के हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो पूछना ट्रांसमिटेंस क्या होगा, तो आई का स्क्वायर होगा, है ना। 75% है ना, 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बोलो 1 ग्राम पर लीटर है तो क्या होगा 0.75 का 1/2, है ना। और थ्राइस कर दिया 6 ग्राम पर लीटर का, तो 0.75 का ये तो फॉर्मूला बना, थ्राइस हो जाएगा, राइट और रॉन्ग।
चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर फार्मूले से करोगे तो फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए, ये पूरा आपको आता ही है, log I0 by I absorption equal to molar absorption coefficient into C into L, ठीक है ना। तो फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए, पहले तो आपको मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये log 1/0.75 इज इक्वल टू ए, पाथ लेंथ 1 है और 2 दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किया, पहले हमने कैलकुलेट नहीं किया, पहली गलती हमने कैलकुलेट कर लिया मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यहां से। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये आ गया। अब इससे आने से अब आपका इजी हो जाएगा, गेस करने से अच्छा है कि रादर देन सीक्वेंस वाइज, है ना। तो ये 100% जब होगा देन आपका ये वैल्यू आएगा, क्योंकि हमने ईटा मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 4 ग्राम एंड पाथ लेंथ तो फिक्स है, तो ये log 100/I है ना। I पूछ रहा है क्या ट्रांसमिटेंस होगा, ठीक है ना। जब ये वैल्यू होगी 4 टाइम कंसंट्रेशन हमने कर दिया, बाकी चीजें फिक्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग नाउ 0.25, दिस इज log 0 माइनस log I, है ना। तो log 100 एंड 0.25 को इधर कर दो एंड log I विल बी हियर। तो log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 2, तो 2 log 10 यानी 2 माइनस 0.25, तो दिस इज 1.75, दिस इज बिकम्स log I। तो I इज इक्वल टू कितना 56.2%। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा रहा है rather than guessing। तो अगर मान लो हम 75 का ट्वाइस कर देते तो कितना होता, चलो कर लो, ट्राई कर लो इसको भी। 75 का 75 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या उतना आ रहा? नहीं आएगा ना, 7-7-49, सीधे सीधे कर लो 70 का, तो ये आ रहा है 50% का 0.56 सर आ रहा है, 0.56 आ रहा है सर, आ तो रहा है, आ रहा है, 0.56 आ रहा है। हाँ, मतलब डायरेक्टली भी वैसे भी कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू गो यस सर, एट दिस लेवल। सर यस सर, हाँ आ तो रहा है, ये देखो, ये करके भी यहाँ ये पे सर आ रहा पड़ा है 0.56। हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सारा लगा लोगे अब तो। चलो दूसरा करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे। ए सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया कंटेन 400 मिलीग्राम ड्राई वेट पर लीटर। अब आपको देखो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नाउ यू कैन सी द प्रॉब्लम्स, है ना, कि व्हाट दे आर आस्किंग एग्जैक्टली। सो 400 mg ड्राई वेट पर लीटर हैज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 in a 1 centimeter cubate at 450 nanometer. What in the cell density in a suspension that has a transmission of 30% in a 3 centimeter cubate? ठीक है, a suspension of bacteria containing 400 mg dry weight per liter has an absorbance of 1 in, ठीक है, 1 centimeter cubate at 450 nanometer. What is a cell density in a suspension? Concentration पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, then you can go for the density. ठीक है, तो C you must calculate. What is given? Concentration already 400 mg dry weight. Cell density in suspension that has transmission of 30%, और इसका क्यूबिट का साइज इन्होंने चेंज कर दिया ना, पाथ लेंथ कर दिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे C ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल C था 400 mg पर लीटर, ठीक है, और एब्जॉर्बेंस था 1 और पाथ लेंथ था 1 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे, ईटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट फॉर ई। ठीक है, तो A इक्वल टू CF, E नहीं पता है, C दिया है 1, पाथ लेंथ 1, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू 1। ठीक है जी, कंसंट्रेशन 400 था ना यहाँ पे, 400, तो ईटा कितना हो गया 1/400,
ठीक है, 1/400 mg हो गया, करेक्ट, Yes, राइट sir. और नॉट? अब देखो, Right, sir. फर्स्ट कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस ऑफ सस्पेंशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूबेड। अच्छा वो भी 130 वाला चक्कर आ गया ना, तो इससे ये कर लिया, इसमें ईटा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। एब्जॉर्बेंस ऑफ सस्पेंशन 1 सेंटीमीटर क्यूबेड, I0/I, ट्रांसमिशन इज 30%, तो 100/30 हो गया, लॉग आ गया 3, लॉग 3 की वैल्यू होगी 0.5, तो ए 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना, ए 3 सेंटीमीटर का कैलकुलेट कर लिया पहले एब्जॉर्बेंस। अब ए 1 सेंटीमीटर के लिए एब्जॉर्बेंस 3 सेंटीमीटर अपॉन 3, तो 0.3 का डिवीजन हो गया, तो आ गया ये, बिकॉज वी नो दैट ए ऑफ 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 400 mg पर लीटर। तो एब्जॉर्बेंस, अब एब्जॉर्बेंस हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया ना, तो एज एन एब्जॉर्बेंस 1, उसके हिसाब से पाथ लेंथ 1, तो पाथ लेंथ 1 पे एब्जॉर्बेंस हो गया 0.17 एंड देन 1 एब्जॉर्बेंस 400। अच्छा वही है जैसे कि 1 OD इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ ना 400 mg पर लीटर, ठीक है, तो हमने OD तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जब ये पाथ लेंथ इन्होंने 3 सेंटीमीटर कर दिया, उसकी OD नहीं पता है, तो पाथ लेंथ हमने OD इसमें कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट OD फॉर दिस, तो इसकी OD आ गई इतना 0.17, ठीक है, तो 1 OD इक्वल टू 400 mg, तो अब क्या होगा 0.17 OD के लिए कितना कंसंट्रेशन होगा, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। बात समझ गए? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Clear हो रहा है. हाँ, तो we have to learn कि how to read the question and how to write the answer. These are the two different things. How to read and what to write. तो तो कंसल्टेशन हमें, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत. हाँ मैंने, अरे यहाँ पे काफी प्रैक्टिस, आप कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे मैंने कलेक्शन को किया हुआ है। अभी क्वेश्चन ये है, सपोज estimate the protein concentration of the undiluted and diluted solution shown below. Measurement were made using a 1 centimeter cubed. ठीक है, undiluted का दिखा रहा है OD, absorbance 280 पे, फिर 260 पे 0.2 आ गया, फिर diluted का 1:10 में 825 पे 0.2, 8:215 पे 0.47. What they are asking? Estimate the protein concentration. Concentration they are asking ना, in undiluted versus diluted. तो कैसे करोगे? कंसंट्रेशन C, तो क्या होता है फार्मूला? A इक्वल टू, याद करो फार्मूला, A इक्वल टू ECl। क्योंकि दो सैंपल है, तो A1 A2 हो गया, है ना, C1 C2, लेंथ तो सेम है ना, इसमें क्या चेंज किया इन्होंने, प्रोटीन की कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, C1 प्रोटीन mg पर ml, तो अनडाइल्यूटेड माइनस डाइल्यूटेड 280 माइनस 260, ये दोनों का घटा दिया, तो एब्जॉर्बेंस 1.55 एंड व्हाट इज द 0.35, यहां से देखो वैल्यू, दो वैल्यू है ना, 0.35 ये है, Yes. राइट, और इससे मल्टीप्लाई किया 1.55, 1.55 कहाँ है भाई, ये देखो 1.5। अच्छा, आपको याद है हमने बताया था जब डीएनए कंसंट्रेशन लेते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोटीन का नहीं बताया था ना, प्रोटीन का ऑलवेज 1.55 से मल्टीप्लाई करना है, 8 ठीक है ना, 260 पे अगर प्रोटीन का लोगे तो 0.76 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज द जनरल फार्मूला। 0.76 से 260 होने से, हाँ 280 पे रहेगा तो 1.55 से मल्टीप्लाई करना है प्रोटीन के लिए, इन द केस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अगर OD 280 होगा
हाँ तो हम 1.55 260 0.76 सर. हाँ ओके. 0.7 और सर 215 होने से 144 करेंगे क्या? राइट. नो 0.47. 260 पे कम होगा, 280 पे ज्यादा होगा. 1.55 280 पे. हाँ 25 नैनोमीटर होने से 0.20. ठीक है सर. राइट. तो आपने ओडीए का सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया. 0.35 का इधर, 0.2 का इधर, फाइनल प्रोटीन कंसंट्रेशन आ गया 0.39 mg पर. तो नई नई चीजें मिल रही है ना करने से. एंड देन इधर भी हमने दो वैल्यू हैं, तो के 215 225 ये कर लिया. चलो ये थोड़ा सा और क्वेश्चन था, बट जो सीएसआर में पूछते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं. कैलकुलेट द एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इज गिवन. A solution containing NAD plus NADH has an optical density in a 1 centimeter cubed of 0.311 at 340 nanometer. है ना. ये क्या है? OD है. 0.3 OD है 340 पे. And 1.2 OD है 260 पे. So calculate the concentration of the oxidized and reduced form of coenzyme in the solution. Both NAD plus and NADH absorb at 260 nanometer, but only NADH absorb at 340 nanometer. The extension coefficient is given below. अब calculate करना है. Calculate the concentration of oxidized and reduced form of NAD and NADH. ठीक है. तो सिंपल मुझे लगता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. So concentration of each form may be calculated as follows. First, calculate the concentration of NADH from its absorbance at 340 nanometer, where the NAD plus does not absorb. तो ये देखो यहाँ पे है ना, NAD का 0 है डेटा. NAD का यहाँ पे 340 पे 0 है. It means it does not absorb anything. ठीक है ना. एब्जॉर्बेंस होता तो देखो ये आया 6220 15,000 आया एंड दिस इज ट्रांसमिटेड. यहां पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुई, 0 हो गया. नाउ बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस. A इक्वल टू बीटा CL. ओके. बीटा CL and absorbance दिया हुआ 0.3, E दिया हुआ 0.62 into 10⁵. C कैलकुलेट करना है. लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. Now C you can calculate 0.3 upon 6.22 10⁵. सर ये 6.22 कहाँ से आया है? अरे दिया हुआ है ना 6200 कुछ करके, उसको कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो ना, डाटा दिया था ना टेबल. ये देखो 6220 नैनोमीटर. ये क्या है? मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट पर मोल पर सेंटीमीटर. तो कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट करोगे? mg पर लीटर में ना. मोलर है, मोल की किस में होता है? ग्राम पर लीटर में होता है ना. सेंटीमीटर. चलो मान लो इसको ना भी चेंज करो कुछ भी, तो 6220 को क्या लिख सकते हो? 6.2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो. यस सर. अरे भाई 1000 है तो क्या लिख सकते हो? 10⁻³ ठीक है. लेकिन अगर 6200 है तो 6.2 इंटू 10⁻³ लिखोगे ना. यस सर. वही सारा कन्वर्जन है.
ये देखो कन्वर्जन ही है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ना, अभी इसे क्लियर नहीं हो रहा। हाँ 10³ है, 6.22 into 10³ राइट, एंड दिस इज -1। तो कैलकुलेशन ये बस, बाकी चीजें 0.311 को कन्वर्ट कर दिया 3.11 10⁻⁻1 में, और ये 6220 था उसको कन्वर्ट कर दिया 10³ में, पॉइंट बना के, माइनस में नहीं होगा, वो गलत लिखा था मैंने। तो नाउ यू कैन सी दिस, सी NADH आ गया आपको। नाउ कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस एट 216 नैनोमीटर रिजल्टिंग फ्रॉम द NADH। तो अब आपका दिया हुआ है 15 है ना, मोलर एक्सचेंज कोएफिशिएंट 15 × 10⁻³ C इक्वल टू आपका NADH का ये आ गया 5 × 10⁻⁵, लेंथ 1 है तो आपको ये आ गया 0.something। मतलब एक डेटा में कैलकुलेशन किया, उसका जो डेटा आया फिर दूसरे में कैलकुलेशन किया, फिर ऐसे करके रिमाइंडर ऑफ द एब्जॉर्बेंस एट 2016 नैनोमीटर मस्ट रिजल्ट फ्रॉम NAD प्लस 1.2 टोटल एब्जॉर्बेंस आई थी है ना 216 नैनोमीटर पे। अब 0.75 आई NADH 216 नैनोमीटर, पूरा घट के कितना हो गया रिमाइंडर 1.2 माइनस 0.75 0.45 हो गया आपका इतना। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बनेगा, फाइनल कंसंट्रेशन इस एब्जॉर्बेंस पे कैलकुलेट करना 0.45। तो A इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट Cl 0.45 इक्वल टू 18 है ना, 18 क्या है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, टेबल से लेना है ये, C कैलकुलेट करना है, लेंथ 1 है, तो आपका C आ गया 0.25 into 10⁻⁵ मोलर। ठीक है ना, एनालिसिस करोगे तो फिर बड़ा क्लियर हो जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, सोल्यूशन कंटेनिंग ये दे दिया अब OD, 2 OD आ गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूस्ड फ्रॉम कोएंजाइम इन सॉल्यूशन, बोथ NAD and NADH absorbed 260 नैनोमीटर बट ओनली NADH absorbed 340 नैनोमीटर। कंसंट्रेशन पूछ रहा है ऑक्सीडाइजर रिड्यूस्ड फ्रॉम, तो आपको ये सारा लेना है। दिस इज मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट 18000 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, 15000 का तो यूज ही नहीं है, हमने 6200 का यूज किया है। तो यहाँ पे इसे निकाल लिया, पहले ये कंसंट्रेशन निकाली, फिर एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर, इस कंसंट्रेशन से एब्जॉर्बेंस निकाल लिया, कितना घटा इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट में एब्जॉर्प्शन 0.45 का, 0.45 पे कितना कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस में तो यही होता है ना, ऑक्सीडाइज रिड्यूस में क्या मतलब है, कोई लाइट पड़ी है ना तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर हुआ ना? yes, तो ऐसे करते करते इससे, हाँ अब ये आया स्टैंडर्ड से है, वो तो बहुत टफ प्रॉब्लम थी, अभी इजी वाले हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफान, सोल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफान, सॉरी पढ़ो जरा इसको। सोल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफान है एब्जॉर्बेंस ऑफ 280 नैनोमीटर, 280 पे कितना है 0.54 इन 0.5 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ इक्वल टू 1 नहीं है हमेशा, 0.5 है। गिवन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 6.4 into 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सीधा सीधा है, ठीक है। यस ये तो हो जाएगा, ऐसे ही आता है सर, Yes. उतना नहीं आता जितना लेकिन मैंने दिया है। 4 मार्क्स के लिए आता है ना, 4 मार्क्स का होता है ना सर, तो ऐसा 4 marks. कैलकुलेशन ना 2 4 मार्क्स के लिए में आता है। आएगा। नहीं 4 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में कभी कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेशन हमेशा 4 मार्क्स में, तभी तो दिमाग खराब होगा। अब ये तो इजी है ना, फटाक से आ गया। ऐसे हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख के कर लोगे, क्योंकि मैंने सबसे टॉप लेवल पे पहाड़ पे चढ़ा दिया।
अब नीचे उतार रहा हूँ. Solution of thickness 2 centimeter, transmit 40% incident light, calculate the concentration of solution given the eta is equal to इतना. ठीक है. तो absorbance solution of thickness 2 centimeter, transmit 40% incident light. Right. Calculate the concentration of solution. कैसे कैलकुलेट करोगे? A is equal to क्या होता है? is equal to ECL और फाइनली is equal to क्या होता है? माइनस log 10 है ना, 100 अपॉन 40. ठीक है. तो कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे क्या किया हुआ डायरेक्ट देख लो. A is equal to eta LC. eta LC is equal to 2 सेंटीमीटर, eta is equal to इतना, और A हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. तो 2 सेंटीमीटर एब्जॉर्ब्स 40% इंसिडेंट लाइट. तो इंसिडेंट 2 माइनस होता तो 1 सेंटीमीटर के लिए है, तो हमने 2 में से घटा देना है जितना ये हुआ है. 2 माइनस हो जाएगा. ठीक है. ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. ओके. परसेंट 40 दिया तो 40 का इन्होंने डायरेक्ट ले लिया है. log 10 40 में से 100. हाँ, तो वही बात होगी वही है ना. 40 ले लो rather than 100 by 40 करने के 40 ले लो. 2 minus 1.6. ट्रांसमिट 40% इंसिडेंट लाइट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रहा है यहाँ पे, इसलिए 100 by 40 नहीं करनी है ना. डायरेक्ट 40 लिखना है. बस हो गया कैलकुलेशन. यहाँ पे खाली टेक्निकल पॉइंट ये था कि एब्जॉर्बेंस कैसे कैलकुलेट करो. एब्जॉर्बेंस आ गई तो बस काम हो गया है ना. ठीक है. A solution shows the transmission of 20% when taken in a cell of 2.5 centimeter thickness. Calculate its concentration if the mole absorption coefficient is इतना. तो यहाँ पे भी क्या करोगे? थिकनेस इन्होंने दिया है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस. अच्छा, यहाँ से रखना है. ये फार्मूला ये मुझे लगता है, ये फार्मूला इन्होंने नया दिया है यहाँ पे. A is equal to 2 minus log 10% T. ये फार्मूला ही नोट कर लो. इसका उसमें नहीं था तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन वगैरह लगा के दे हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला. तो जब भी देंगे ये ट्रांसमिटेंस ऑफ 20%, बस सीधा सीधा 2 minus log 10 multiply 20. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 2 minus log 10 20. अब लॉग वाला थोड़ा सा तुम्हें सीखना पड़ेगा, मुझे आता नहीं ज्यादा. ये log 10 0.020 वो देखना पड़ेगा. log 10 की वैल्यू साथ देखते हैं. 20 में तो आएगी 1.3, तो इस हिसाब से 0.698 हो गई absorbance. Now you can calculate C is equal to A upon eta L. ये log थोड़ा सीख लो तुम लोग. ठीक है. थर्ड प्रॉब्लम करते हैं. Okay, sir. Calculate the molar absorptivity of 1 into 10 power minus 4 molar solution which has an absorbance of 0.2 and the path length is 2.5 centimeter. तो बराबर लिखना शुरू करो. क्या दिया हुआ? is equal to eta LC. L is equal to 2.5 centimeter. A is equal to 0.2. C is equal to 10 power minus 4 molar. Not into the eta. It is to A upon LC. आगे कैलकुलेट. इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल था ही नहीं है ना. एब्जॉर्प्टिव 10 पावर माइनस 4 C हो गया. अब C को इन्होंने छिपा दिया एक नए टर्म से है ना. C को उन्होंने नए टर्म से छिपा दिया. दे हैव रिटन दैट मोलर एब्जॉर्प्टिव. ठीक है ना. बस एक ही टेक्निकल काम यहाँ पे.
C were written as a molar absorptivity. अब इस तरह से आप थोड़ा टेक्निकल बना सकते हैं CSIR में कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट tRNA है ना, थोड़ा दे दिया बायोमॉलिक्यूल का नाम. Aqueous solution is 10 molar. The absorbance is found to be 0.209 when the solution is placed in a 1 centimeter cuvette. है ना, asked to calculate the specific absorptivity. Specific absorptivity यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, राइट? वो मोलर absorptivity के बराबर ही है. तो ईटा कैलकुलेट करना है. वैसे भी तुम्हें पता लग जा रहा है, कंसंट्रेशन 10 मोलर दिया है तो दिस इज कंसंट्रेशन 10 मोलर, और ओडी दिया है या एब्जॉर्बेंस 0.29209, प्लेस इन 1 सेंटीमीटर, लेंथ इसको दिया है 1 सेंटीमीटर. तो ईटा ही नहीं पता है खाली, तो ईटा ही पूछ रहा होगा, तो A/LC कर लो. ठीक है, बाकी कोई यूनिट में चेंजेस है नहीं, आराम से लिख सकते हो. ठीक है. दूसरा दिया व्हाट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन एज 5 मोलर. तो यहाँ C चेंज किया है और ईटा हमने कैलकुलेट कर लिया पहले वाले में, वो लगा देंगे यहाँ पे. क्लियर. लास्ट में पूछा व्हाट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द पाथ लेंथ. द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे चेंज किया पाथ लेंथ, तो ईटा पता है, L 5 सेंटीमीटर चेंज किया है, C 10 मोलर है, तो आंसर विल बी दिस. क्लियर. चलो इसको देखो, कैलकुलेट द मोलर एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन व्हिच हैज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.17 व्हेन द पाथ लेंथ इज 1.3. तो पाथ लेंथ L दे दिया, A इक्वल टू फार्मूला पता है, A दिया है 0.17 एंड C दिया है 0.5 into 10³ मोलर. ईटा पूछा हुआ है. डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई ना अच्छे से. Now consider the extension coefficient of NADH at 340 nanometer. इतना, where the NAD does not absorb, वही सेम वाला है जो दिया था, थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया. What absorbance will be absorbed when light at 350 nanometer absorbed through 1 centimeter cuvette containing 10 micromole NADH and 10 micromole NAD. क्या पूछ रहा है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कह दिया हुआ है इतना. NAD does not absorb, तो उसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आएगा नहीं. NAD का मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नील. ठीक है. What absorbance will be absorbed? तो एब्जॉर्बेंस पूछ रहा है when light at 340 pass through 1 centimeter cuvette containing 10 molar NADH and 10 molar, एक ही क्यूबेट में दोनों है. तो कंसंट्रेशन C कितना हुआ एक्चुअल में, ये हो गया 10 माइक्रोमोलर. मोलर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ यूनिट कन्वर्जन है. सो एब्जॉर्बेंस नाउ यू कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग E, L एंड C. ठीक है बेटा, क्लियर. दिस इज क्लियर और नॉट, बोलो. बोलो. है ना, अभी थोड़ा काफी प्रैक्टिस होगी, तो आप जब ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन देखोगे तो नाउ यू विल बी इन सिचुएशन टू. यस सर. कुछ भी दिया आप कैलकुलेट कर लोगे, और ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी. अच्छा, ये एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना. ऐसे नोटेशन देते हैं, GA है ना, ऐसे लिखा हुआ GKTS. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यही पूछा हुआ था. इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे लिखा ब्रैकेट में Kg माइनस एक्स. अमीनो एसिड का है. हाँ, बस अमीनो एसिड का है कि मतलब रिफ्लेक्ट क्या, Ag मतलब क्या, एलानिन और ग्लाइसिन. G से ग्लाइसिन, A से एलानिन. यस सर. हाँ, फिर X4 का क्या मतलब हुआ, W से ट्रिप्टोफैन है, S से सेरीन है, T से थियोनिन है. हाँ, ठीक है ना. तो चलो आज यही करते हैं, ये तुम देख लेना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो कल हम क्या पढ़ेंगे, सिग्नेचर. हाँ, क्या ये देख लेना, सिग्नेचर आजकल पूछ रहे हैं, सिग्नेचर सीक्वेंसेस.
ठीक है, सिग्नेचर सीक्वेंसेस ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं मिलेगा, इसका जवाब यही मिलेगा। सिग्नेचर सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल दे वर आस्किंग अबाउट द एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, दिस इज कॉमन टू ऑल आर्किया एंड यूकेरियोट, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो दिस इज द सिग्नेचर सीक्वेंस फॉर, है ना, दिस पर्टिकुलर सिग्नेचर इज वन ऑफ द बायोकेमिकल क्लियर्स। तो ये स्पेसिफिक, हाँ, ये स्पेसिफिक जैसे आर्किया और यूकेरियोट के लिए सिग्नेचर सीक्वेंस होगा, इसका जो सीक्वेंस होगा एलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा और टी। सिग्नेचर सीक्वेंस हैव बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट मेनी डिफरेंट टैक्सोनॉमिक लेवल। तो ये है सर मीन सर समझो सर ये मार्कर है ना सर, ये सिग्नेचर सीक्वेंस है, स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंसेस है, कंजर्व सीक्वेंसेस है। बाकी इसमें तो कोई बैक्टीरियम नहीं है। बैसिलस इकोलाई में दिस इज एब्सेंट, एवरीथिंग देयर बट दिस इज एब्सेंट, और जबकि आर्किया और यूकेरियोट में दिस इज प्रेजेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सिग्नेचर सीक्वेंस। 1 मिनट में हो गया। अभी सिग्नेचर सीक्वेंस की बेस पे इन्होंने ये पूरा इवोल्यूशनरी ट्री बनाया है, derived from amino acid sequence comparison, right? The bacterial evolutionary tree based on the sequence diagram observed in the Groial family of protein. Okay. एक लूका के बारे में पूछा था, व्हाट इज लूका? लूका इज द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑल अदर लाइफ तो जो सबका कॉमन है। हाँ, एक परदादा है दादा परदादा उसका परदादा है। लूका, लूका नाम याद कर लो अपने परदादा का है ना, वो था लूका। लूका, यस सर, है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना सकते हो, भाई आपके परदादा का क्या नाम था, है ना, आपको पता नहीं होगा, तो आपके परदादा का नाम था लूका। ये लूका के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो देखें, ठीक है। तो अगला वीडियो आप दिखाइए। ठीक है सर। व्हाट इज लूका? पेरेंट्स ने दिया आपने तो। हाँ सर आजकल बच्चा भी समझ गया है कि मतलब क्या हो रहा है सब, क्यों थंबनेल ऐसा बना रहे हैं, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। हाँ, पहले बेवकूफ बनाते थे थंबनेल से, अंदर कुछ नहीं होता था, बाहर तो बड़े बड़े चीजें लिख देते थे हाँ, तो खाली अगर आप ये थंबनेल बना के डाल दो कि डू यू नो हु वाज योर फोरफादर, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें तो बस यही आंसर है कि आपके फोरफादर का नाम था लूका लूका। सर वो भी लास्ट में बताएंगे, उससे पहले तो कुछ बकवास करेंगे, लास्ट में बता देंगे। नहीं, पहले वीडियो नहीं बताएंगे ना, पहला वीडियो आएगा, फिर दूसरे में भी कुछ बकवास करेंगे, तीसरे में भी बकवास करेंगे कि भाई ये आर्किया था, ये बैक्टीरिया था, ये ऐसे था वैसे था। 1 हफ्ते तक पूरा इवोल्यूशनरी ट्री पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन लूका नहीं बताएंगे। लूका बताएंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो एक पिक्चर बनी थी ना, कटप्पा को किसने मारा? हाँ सर, बाहुबली, है ना बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, ऐसे कुछ था। तो वो मेन बात ही नहीं किया जिसको कि जानना था लोगों को, वो बताया ही नहीं, पहले पूरी कहानी खत्म कर दी और जिसके ऊपर स्टोरी बनी उसका पता ही नहीं था उसमें आपके फोरफादर कौन थे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पूरा दिखा डालो, फ्यूजोबैक्टीरिया, है ना, फ्लेक्सीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अल्फा बीटा पर्पल, सब दिखा डालो, वो सब याद कर लेंगे, लेकिन लूका बाद में बताना तो हाँ, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्रोटीन विद 682 अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन? कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा? तो एक का होता है 660 होता है ना, एक अमाइनो एसिड का 660 होता है, so 110 660 गुणे 682 है, 110 होता है। अच्छा हाँ ये सर, so वो डीएनए का डेल्टा 660, हाँ, तो 110 ये प्रोटीन का होगा, 110 into 682 कर दोगे आ जाएगा आपका। इस एसआर में देख रहा था, एज सच क्वेश्चन आया हुआ ये वाला,
एज सच मैं कहीं से क्वेश्चन डिस्कवर कर रहा था, तो अचानक मेरी निगाह पड़ी कि ये दिस क्वेश्चन वाज एज सच कॉपीड। तो सोच लो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं वो क्ल्यू दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ोगे तो आपका CSIR निकल जाएगा। एंड दिस इज ऑलरेडी वी हैव solved it. A quantitative management analysis revealed the BSA contain 0.58% tryptophan by weight. Calculate the molecular weight of BSA, है ना? तो molecular weight कैलकुलेट करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, वो वाला नहीं है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी of BSA gives a molecular weight estimate of 70,000. How many tryptophan residue are present in a molecule of serum albumin? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तभी सॉल्व होगा जब ए वाला सॉल्व होगा। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BSA। प्रोटीन का कितना? पहले सर एक का निकाल देंगे जब। हाँ, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BSA assume there is only tryptophan residual one tryptophan per protein molecule। तो अब 0.58% दे तो दिया यहाँ पे BSA में 0.58, तो जो आएगा उसका 0.58% कर देना है, तो वो 1 tryptophan का आ जाएगा। ठीक है। तब 70,000 का कितना हुआ? 70,000 और जो 0.58% पे कैलकुलेट किया उसका डिवीजन कर दोगे, देन यू विल नो कि हाउ मेनी ट्रिप्टोफैन आर देयर। अच्छा, ये देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पेप्टाइड, ये भी बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके आ रहा है क्वेश्चन। कल मैंने ये वाला कराया था ऊपर वाला। सर इसमें एक N टर्मिनल है और ये एक कार्बोक्सिलिक C टर्मिनल। उसके बाद सर इसका पीके वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ग्लूटामिक, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन। अच्छा, ऊपर वाला कल सॉल्व किया था। पूछ रहा है। चलो इसको तो आते हैं, पहले ऊपर वाले देख लो, 10th वाले। प्रोटीन इज मॉलिक्यूलर वेट 400 kDa। Subject of electrophoresis in the presence of HDS कर दिया। ठीक है। प्रोटीन की 3 बैंड, तो 400, 180, 180, 160 और 60 मिल गया। तो 1, 2 कितना बना टोटल? 8, 9, 10, 400 बना सर। हाँ, 400 बना, 400 बराबर हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HDS एंड DTT। अब ये HDS में तो 3 बैंड आया, अब ये HDS प्लस DTT कर दिया, तो आपका आ गया 3 बैंड अगेन। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 160। अब ये चेंज हो गया, 160, 90 और 60 और 60। डिटरमाइन द सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसी से। 160 तो मैच कर रहा है, पहले मैचिंग करा लो ना। 60 भी मैच कर रहा है। 310 180 90 हो गया। 310। हाँ, 180 डबल हो गया। हाँ, 90 का डबल हो गया ना। ये डाइमर है, होगा। ये डाइमर है ना HDS DTT में। यस सर। तो इसमें एक तो डाइमर हो गया और 2 मोनोमर हो गए। मोनोमर हो गया। आंसर मेरे पास नहीं है, हमें तो ऐसे सॉल्व भी करना है। सर नेचर पूछते हैं। यस सर। DTT में डाला तो वो जो 180 था वो क्लियर हो गया, 90 में आ गया। हाँ, तो एक डाइमर हो गया, बाकी 2 मोनोमर। अभी सब आपको मजबूत कर रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि अब तो CSIR ने गजब कर दिया भाई। 100% यू हैव टू सॉल्व। आपको बहुत ज्यादा रेसिंग करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट मिस। मतलब अभी शॉर्टकट वाला जमाने खत्म कर दिया है ना। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल एट pH दिया हुआ है 3.811। पीके वैल्यू ऑफ साइड चेन टेबल में दिया हुआ। एस्टिमेट द PI, मतलब डायरेक्टली वो आपको बता दिया। प्रीवियस वाला क्वेश्चन था सर।
हाँ, तो अब ऐसा है कि कल से हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज द क्या, क्लोनिंग, क्लोनिंग इन बैक्टीरिया। क्लोनिंग, हाँ, तो कल ही खत्म हो जाएगा। इसमें काफी क्वेश्चन भी आ रहे हैं क्लोनिंग से। ये देखो क्वेश्चन आएगा, निकाल देता हूँ। Which one of the following molecular marker type use combination of both restriction enzyme and PCR? एंड पीसीआर टेक्निक। दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज करना है, पीसीआर भी यूज करना है। सर एसएसआर गलत, आंसर क्या है? एफएलपी। AFLP। हाँ, अच्छा, अब देखो एक अच्छा, चींटी हाँ, के ये बारे तो- में, एक चींटी के बारे में पूछ रहा है। एंड मूविंग स्ट्रेट अपॉन encountering an obstacle may turn either right or left. कंटिन्यू डांस कर रही है चींटी। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डायरेक्शन chosen by the ant is random, the most appropriate statistical test is कौन सा? सर पता नहीं। इसका होगा गुडनेस ऑफ फिट होगा मेरे ख्याल से। दो कंपैरिजन कर रहा है ना। Goodness of it, my goodness. हाँ, गुडनेस वही है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, Bioinformatics tool which is used to find sequence similarity in the subunit of hemoglobin. Blast. ब्लास्ट, ठीक है। ए प्रोटीन हैज वन ट्रिप्टोफैन, देखो वही जो मैंने कराया वैसी कॉपी है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ए प्रोटीन हैज वन ट्रिप्टोफैन एंड वन टायरोसिन सीक्वेंस, मतलब थोड़ा सा चेंज करके। एज्यूम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है 280 नैनोमीटर ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन आर 3000 1500 दे दिए दोनों का, है ना। दो अमीनो एसिड का पूछ रहे हैं। व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब आपको सिर्फ A1 अपॉन A2 ईटा 1 अपॉन ईटा 2 करना है। तो ईटा 1 ईटा 2 दिया हुआ है हाँ, और कंसंट्रेशन पूछ रहा है, एक का कंसंट्रेशन दिया है। थैंक यू सर। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कल हम लोग देखेंगे इसको। चलो बाय बाय। okay sir. Good night sir.